وہ خدا کے نام کی غیرت رکھتا ہوا اس نے کہا کہ میں اس فلسطین سے لڑوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند اور جلالی نام میں تمام دیکھنے والے اور سننے والے تمام عزیزوں کی میں سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج یہ موقع دیا کہ میں خداوند کے بابرکت کلام کی منادی کر سکوں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ جو خدا کے کلام کی منادی اور خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا کے خادم چیئرمین پاسٹر آصف صاحب، وائس چیئرمین مبشر عامر صاحب اور جنرل سیکرٹری پاسٹر خارث صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے پاس آئے تاکہ ہم خدا کے کلام کی مل کر منادی کریں اور مل کر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں، آج جو ہمارا عنوان ہے کہ قوم کی غیرت، میرے عزیزوں، آپ نے اس ملک پاکستان میں بہت ساری جگہوں میں ایسا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب ہماری قوم کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اپنی قوم کی غیرت رکھنے کے باوجود ہم اپنی قوم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تاکہ ہمارا نام یا ہماری تصویر یا ہمارا یہاں پر جہاں پر وہ واقعہ ہوتا ہے ہونا ضرور نہیں، کیونکہ ہم اپنی قوم کی غیرت نہیں رکھتے۔ میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کی کیسے غیرت رکھی۔ میرے عزیزوں، آئے میرے ساتھ خروج کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت سے لے کر 12 آیت تک خداوند کے بابرکت کلام کو سنیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ میرے عزیزوں، خداوند کے بابرکت اور پرفضل اور لا تبدیل کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو۔ میرے عزیزوں، آپ تمام لوگ جو ہیں اس کہانی کو جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ جو موسیٰ تھا، جب خدا کے لوگ، خدا کی قوم بنی اسرائیل مصر کے علاقہ میں رہ رہی تھی تو قوم بنی اسرائیل کی آبادی بہت بڑھ رہی تھی، تو مصر کا جو بادشاہ تھا، میرے عزیزوں، اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ اسرائیل کا، عبرانی کا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے اور بچی کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے عزیزوں، اس وقت خدا کے بندہ موسیٰ کی پیدائش ہوئی اور خدا کے بندہ موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کی پیدائش جب ہوئی تو وہ بہت ڈر گئی، گھبرا گئی، کیونکہ اس کے ملک کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کا حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ میرے عزیزوں، خدا کے بندہ موسیٰ کی ماں نے ایک ٹوکرا لیا اور اس میں ڈال کر موسیٰ کو دریا میں رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کر دیکھتی رہی۔ میرے عزیزوں، وہاں پر فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس ٹوکرے کو دیکھا تو اس نے اپنی سہیلی کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو پکڑ کر لے آ، اور جب وہ اس ٹوکرے کو لے آئی اور اس نے اس ٹوکرے کو لے کر اس کو کھولا اور اس ٹوکرے میں سے بچوں کو لیا اور بچے کی پرورش کی، اور موسیٰ وہاں پر مصریوں کے پاس بڑھتا رہا اور پھلتا اور پھولتا رہا۔ میرے عزیزوں، جب جوان ہوا تو اس کو اپنی قوم کی غیرت تھی۔ جب وہ محل سے باہر نکلا تو میرے عزیزوں وہ دیکھتا ہے کہ عبرانی کو مصری مار رہا ہے، کیونکہ اس میں اپنی قوم کی غیرت تھی، لیکن وہ تھا عبرانی لیکن پلا
बड़ा उसकी पैदाइश से लेकर जब वो जवान हुआ उस तक उसकी परवरिश जो थी वो मिस्रियों ने की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी कौम की गैरत रखता था। मेरे अजीजों, जब मिस्री को उसने देखा कि वो इब्रानी को मार रहा है तो उसने इधर उधर निगाह करके देखा और उसे कुछ भी नजर ना आया, तो उसने इब्रानी को उस मिस्री से छुड़ाया और मिस्री को वहां पर कत्ल किया और कत्ल करके उसको रेत में छुपा दिया। ये है कौम की गैरत। मेरे अजीजों, क्या आज हम अपनी कौम के लिए ऐसी गैरत रखते हैं? क्या आज हमारे में ऐसी गैरत अपनी कौम के लिए है? मेरे अजीजों, अगर किसी भी इलाका में, किसी शहर में, किसी गांव में अगर हमारी मसीह कौम के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो हम वहां पर जाने के बजाय हम छुप जाते हैं। हम वहां पर जाते नहीं, हम 100 बहाने बना लेते हैं कि वहां पर हम जाएंगे, हम पर भी नजर पड़ेगी, हम भी एक बार वहां पर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम उस वक्त जाएंगे जब सारा मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और उनसे कहेंगे कि जो कुछ हुआ है ये खुदा की मर्जी है, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि कौम की गैरत रखना ये खुदा के कलाम का हुक्म है। खुदा ने भी अपनी कौम की गैरत रखी और खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, तो हम अपनी कौम के लिए कितनी गैरत मेरे अजीजों रखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के बंदा मूसा ने अपनी कौम की देखो कितनी गैरत रखी कि मिस्री उसकी कौम के बंदे को मार रहा था, लेकिन मेरे अजीजों उसने अपनी कौम के बंदे को उससे मार खाते हुए और उस पर जुल्म होते हुए देखा तो उसने मिस्री के हाथ से उस इब्रानी को छुड़ाया और मिस्री को उसने कत्ल कर दिया। यह है कौम की गैरत। मेरे अजीजों, आप दाऊद के बारे में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब दाऊद अपने भाइयों का खाना लेकर गया तो वहां पर जो जाति जूलियत था, सैमुएल की किताब और उसका 18 बाब में यह सारा वाकया मौजूद है। मेरे अजीजों, जब वहां पर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया तो जाति जूलियत जो था फलस्तीनी, वो खुदा के लोगों को ललकारता था। तो जब दाऊद ने उसकी ललकार को सुना तो दाऊद के अंदर गैरत आई अपनी कौम की, अपने खुदा की कलाम की। मेरे अजीजों, तो उसने कहा ये होता कौन है जो मेरे जिंदा खुदा की गैरत को ललकारे, क्योंकि उसके अंदर खुदा की गैरत थी, उसके अंदर कौम की गैरत थी। और जब उसने जाति जूलियत की इस आवाज को सुना कि बनी इसराइल में कौन ऐसा जवान है जो मेरे साथ जंग करे, मेरे साथ लड़े, सो मेरे अजीजों, आपने कलामे मुकद्दस में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे खादमों से भी सुना होगा, वो उस वक्त छोटा बच्चा था। मेरे अजीजों, उसके अंदर अपनी कौम की गैरत थी। उसकी कौम को जाति जूलियत जो था वो ललकारता था, बार बार उनको कहता था कि मेरे साथ जंग करो, मेरे साथ लड़ो। मेरे अजीजों, क्योंकि उनमें खौफ था, वो उसके मुकाबला में नहीं निकलते थे। मेरे अजीजों, जब खुदा के बंदा दाऊद ने उसकी आवाज को सुना, उसको ललकारते हुए सुना, तो उसके अंदर खुदा के कलाम की गैरत आई, उसके अंदर खुदा के नाम की गैरत आई। वो खुदा के नाम की गैरत रखता हुआ उसने कहा कि मैं इस फलस्तीन से लड़ूंगा। हालांकि वो जंग का जो सामान था वो पहनकर चल भी नहीं सकता था। मेरे अजीजों, तो फिर भी उसने क्या किया? उसने जाति जूलियत के साथ जंग की, क्योंकि उसका खुदा पर भरोसा था, उसका खुदा पर ईमान था, तवक्कुल था। वो अपनी कौम के लिए गैरत रखता था, खुदा के नाम की उसके अंदर गैरत थी। मेरे अजीजों, क्या आज हम में अपनी कौम के लिए और अपने खुदा के लिए कितनी गैरत है? हम अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खुदा के लिए कितनी गैरत रखते हैं? मेरे अजीजों, मैं इस बात को बहुत दफा देख चुका हूँ कि जहाँ कहीं मसीह कौम के साथ जुल्म होता है, सितम होता है, नाजायज होता है, तो मेरे अजीजों हम वहां पर नहीं जाते। सो मेरे अजीजों, खुदा पर ईमान रखते हुए, हम खुदा पर तवक्कुल रखते हुए, हम अपने मनजी खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, हम अपने अजीजों अकारब, अपनी कौम के पास जाएं जिनके साथ
नाजायजी, जिनके साथ जुल्म और सितम हुआ है, हम अपनी कौम की गैरत रखते हुए उनके साथ आवाज को बुलंद करें। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है खुदा के बंदा दाऊद की तरह, कि जिस तरह उसके दिल में अपनी कौम की गैरत आई, जिस तरह उसके अंदर खुदा की कलाम की गैरत आई। मेरे अजीजों, इसी तरह हमें खुदा के कलाम की, खुदा के नाम की, अपने कौम की अपने अंदर गैरत को रखना है और गैरत को जगाना है, ताकि हम अपनी कौम के साथ मिलकर खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हुए हम कौम की आवाज बने, कौम की आवाज बनकर उसको हम आगे लेकर आए, ताकि हम इस दुनिया में भी और उसके बाद जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और फतहमंदी का नारा लगा सके। मेरे अजीजों, आज के जो कलाम जो हुआ है उसके वसीला से खुदा आप तमाम को बरकत दे, आमीन। सो आए हम दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक का दोस्त खुदावंद, तू आज कल और अब तक यकसा है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मेरे खुदावंद, तू अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों पर अपना रहम और अपना फजल कर। जिस तरह खुदावंद तूने अपने बंदा दाऊद पर अपना रहम और अपना फजल किया, जिस तरह तूने अपने बंदा मूसा पर अपना रहम और अपना फजल किया, मेरे खुदावंद तमाम मसीह कौम पर भी तेरा रहम और तेरा फजल चाहते हैं, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरे नाम की, तेरे कलाम की, अपनी कौम की अपने अंदर गैरत रखते हुए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और अपनी कौम के साथ खड़े हों। जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा दाऊद खड़ा हुआ, जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा मूसा खड़ा हुआ, मेरे कदूस खुदावंद इसी तरह अपनी कौम के साथ खड़े होकर मेरे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल और तेरी बंदगी, तेरे नाम की जय जयकार करने वाले बने। इस चैनल के लिए खुदावंद जी तू इससे बरकत की दुआ करते हैं। मेरे कदूस खुदावंद, ये चैनल ऐ खुदावंद जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ऐ मेरे कदूस खुदावंद जी, इस चैनल को चलाने वाले लोग भी खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल, तेरी बंदगी, तेरे नाम की जय जयकार करने वाले बने। और खुदावंद तू आसमान के दरीचे खोलकर इनको बरकत अता कर, तेरे लोगों में जाकर खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने वाले बने। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।